Assalamu alaikum everyone. I'm Hafiza Amna Shabir and I'm proudly known as Hafiza AI Wali. Alhamdulillah, I am Hafiz Quran and currently a level 1 teacher training student batch 6 at Rehan School Lahore campus, where I am learning artificial intelligence and modern teaching skills. I am passionate about exploring AI, education, technology, and personal development. And I love sharing meaningful conversations that inspire learning and positive changes. So, welcome to today's special interview. Our topic is AI and the future of work. Today, we are honored to have a wonderful and inspiring guest with us, Amina Leadership Wali. She will share her valuable experiences, insights, and practical perspectives on how artificial intelligence is transforming the workplace and creating new opportunities for the future. So, without further delay, let's begin our conversation and discover what the future of work look like in the age of AI. अस्सलाम वालेकुम आमिना लीडरशिप वाली कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ. Okay, so first of all, could you please introduce yourself to our viewers? Uh, yes, I will definitely introduce myself. Thank you for having me here. My name is Amna Jahangir, and I am a student of bachelor's, and I am doing bachelor's in biotechnology from University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore. And besides my academic, I also love to participate in debates. I am a debater, a public speaker, and a demonstrator at science exhibitions. And I guess this is all about my introduction. Okay, thank you so much for your wonderful introduction. It is truly an honor to have you with us today. So, moving on the next question. Today's topic is AI and the future of work. So, what does this topic mean to you? Okay, so let's start with your first question. To me, AI and the future of work means using technology to make work smarter, faster, and more efficient. AI can handle repetitive tasks, allowing people to focus on creativity, problem solving, and innovation. So this is all mean to me. That's a wonderful perspective. I completely agree that learning AI is becoming essential in today's world. ओके सो नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं कि आपके ख़्याल में जो मस्नूई ज़हानत है वो हमारी रोज़मर्रा की मुलाज़मतों में सबसे बड़ी तब्दीली क्या लेके आ रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसने ना सिर्फ हमारी जो डेली टास्क है उसके अंदर एक तब्दीली पैदा की बल्कि उसने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे इर्द-गिर्द जितने भी जगहों पर डिफरेंट किस्म के जो हम काम करते हैं, उसके अंदर जो मैनुअली पहले इंसान काम करते थे, उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसने अपना गलबा पा लिया। जिसकी मदद एग्जैक्टली से हर काम के अंदर हमें अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका रोल ज़्यादा नज़र आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वाक़ई वक़्त बचाने के साथ-साथ लोगों को तख्लीकी अंदाज़ में काम करने का भी जो है वो मौके मिल रहे हैं। ओके सो नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं which industries are benefiting the most from artificial intelligence today? There are almost all of the industries are benefiting from the AI, but in my opinion, the more beneficial industries are healthcare, education, finance, and manufacturing and marketing industries, because AI helps improve accuracy, efficiency, and customer experience across these sectors the most. That's really impressive. It clearly shows that AI is becoming an important part of almost every industry. Okay. Next आप मुझे ये बताएं do you think AI will create more jobs or replace existing ones? Definitely, I believe AI will do both. It will replace some repetitive jobs and while creating some new opportunities. For example, अगर हम देखें तो पहले जो भी ऑफिस के काम होते थे वो मैनुअली वर्कर्स आके करते थे। बट अब मोस्टली जो काम है वो एआई की मदद से होता है जिसके अंदर एआई टूल्स यूज़ किए जाते हैं, डाटा एनालिटिक्स के अंदर और डिफरेंट बहुत सी चीज़ों में जैसे फ्रीलांसिंग जो है वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी एआई की वजह से आई है। So, as technology evolves, there will be a growing demand for people with AI related and digital skills. Okay, that's very encouraging. नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं कि कौन से नए मौके पैदा कर रही है एआई आजकल के नौजवानों के लिए?
एआई आजकल के जितने भी यूथ है उसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो डेवलप कर रही है। अगर हम लोग सब एक एग्जांपल फ्रीलांसिंग की ही ले लें, उसके अंदर हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और हम लोग कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं और बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिनको जो हम एआई टूल्स को यूज़ करके बहुत से टास्क हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है उसने कोई प्रेजेंटेशन या कोई असाइनमेंट करना है, तो उसको मैन्युअली हर चीज़ को अलग-अलग से रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वो किसी एआई टूल को अपना टॉपिक देगा और वो उसको पूरी एक प्रेजेंटेशन या एक असाइनमेंट जो है वो बना के दे देगा। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही आपने बहुत अच्छा आंसर किया। ये वाकई यूथ जनरेशन के लिए एक नई बेहतरीन मौके लेकर आ रही है और इस तरह से वो अपनी नई महारतें सीखें और आगे मुस्तकबिल अपने लिए खुद तैयार करें। नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं आमिना, विच स्किल्स शुड स्टूडेंट्स स्टार्ट लर्निंग टुडे टू प्रिपेयर फॉर एन एआई ड्रिवन फ्यूचर? Uh, in my opinion, students should focus on digital literacy, critical thinking, communication, and problem solving because all these abilities will help them to grow in their future. And learning basic programming and understanding how AI works will also give them a strong advantage. Okay, wonderful. Human skills and AI skills together make a strong combination for future success. So, move on the next question. Can artificial intelligence improve productivity without replacing human creativity? Yes, absolutely. AI can make work more efficient by handling repetitive tasks, but human creativity, emotions, and original ideas remain irreplaceable and are essential for innovation. It means that we should always reliable on humans and use AI tools as a help. That's a beautiful thought. AI is a partner, not a replacement for human creativity. नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं कि उस्ताज़ा और तलबा अपनी तालीम में एआई से किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं? साथज़ा और तलबा जो है वो अपनी डेली रूटीन में एआई से बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के बेनिफिट्स जो हैं वो ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टूडेंट है उसके पास भी एक्सेस है एआई टूल्स की और वो वहाँ से भी इसकी हेल्प ले सकता है। लेकिन मेजरली जो रोल इसके अंदर अदा करते हैं वो उसातज़ा है, क्योंकि उसातज़ा जब एआई की हेल्प से अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। एक तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है, दूसरा जब उनको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो और बेटर तरीके से स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकते हैं। और उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ़ पढ़ने का सोर्स ज़रूरी नहीं है, उनके लिए मेंटरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि उनको टीचर्स ही दे सकते हैं। तो एआई इस तरह टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को हेल्प कर रहा है और इन दोनों में एक बैलेंस रख रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बहुत अच्छा आंसर किया आमिना। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल आंसर। नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट misconception people have about artificial intelligence? One of the biggest misconception is that AI will completely replace humans, which is totally wrong. In reality, AI is a tool designed to support people, and the best results come when humans and AI work together. Okay, thank you for explaining this so clearly. Understanding AI correctly is the first step toward using it responsibly. Okay, next आप मुझे ये बताएं how AI is artificial नहीं एक सेकंड आप मुझे ये बताएं how AI is changing the hiring and requirement process. AI is making recruitment faster by screening resumes, matching candidates with job requirements, and scheduling interviews. It helps recruiters save time and focus on selecting the best talent. As you can see, whenever we were trying to participate in any kind of scholarship or we want to admission in any institute or also we want a job from any organization, so they want us to submit our resumes or CVs to them. They have an artificial intelligence programming which can check that resumes and answer us back by emailing. So this all process is doing by AI. So it will help in the hiring and recruitment process. Okay, that's a very balanced answer. AI can certainly save time, but human wisdom and experiences are still essential in making the right hiring decisions.
ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में एआई मुस्तकबिल में कौन से ऐसे शोबे हैं या कौन से ऐसे पेशे हैं जिनकी वजह से ज़्यादा तरक्की करेगी? एआई वैसे तो अभी भी अगर मेरा ओपिनियन है तो उसके मुताबिक एआई अभी भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। लेकिन इन फ्यूचर बिल्कुल। एआई मज़ीद जो है वो डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ज़्यादा जो बेटर रोल है वो प्ले करेगा। और उसके अलावा हेल्थ केयर का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर एआई ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, लेकिन अब उसकी ज़्यादा ग्रोथ जो है वो हमें इन फ्यूचर देखने को मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे हमारी जो यूथ जनरेशन है उनको भी अंदाज़ा होगा कि उन्हें मुस्तकबिल के लिए किन महारतों पर तवज्जो देनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं, डू यू थिंक ट्रेडिशनल जॉब्स कैन इवॉल्व विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? Yes, traditional jobs can definitely evolve with AI. Instead of replacing workers, AI can assist them by automating routine tasks, allowing them to focus on more valuable and creative work. Okay, that's very encouraging thought. AI is helping professionals become more productive instead of replacing their expertise. Okay, my next question is, why is lifelong learning is so important in the age of AI? Learning is essential because technology is constantly evolving. Continuously learning new skills help people stay adaptable, competitive, and prepared for future career opportunities. As I told you earlier, that teachers should update their lectures by using the help of AI, because they can get the updated information regarding the topic they are going to teach their students. So that's why lifelong learning is really essential, not only for artificial intelligence technology, but also all other aspects. Okay, I completely agree. Learning is no longer an option, it's necessity to today's digital world. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आमिना, नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं, एआई अगर किसी शख्स से सीखना शुरू करना चाहें हम, तो आप ऐसे कौन से टूल्स हैं जो इस्तेमाल करने का मशवरा देंगी एआई से रिलेटेड? सबसे बेस्ट जो टूल है जो कि फ्री भी है और मोस्टली अगर देखा जाए लोगों के उसके बारे में अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो वो चैट जीपीटी है, जो कि हमारी मोस्ट ऑफ द टास्क को करने में हेल्प करता है। उसके अलावा अगर हम लोगों को किसी भी तरह की कोई पिक्चर को बनाना है या कोई विजुअल्स बनाना है, तो उसके लिए कैनवा जो है इट विल बी अ बेस्ट सोर्स। और इफ़ यू वांट टू मेक एनी प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट, सो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी टूल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इट विल हेल्प्स अ लॉट। ओके, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं, हाउ कैन प्रोफेशनल्स रिमेन रेलिवेंट इन एन एआई पावर्ड वर्कप्लेस? Our professionals should keep learning new technologies, improve their digital skills, and stay open to change. Strong communication, creativity, and problem solving abilities will always remain valuable alongside artificial intelligence. ओके, एग्जैक्टली ट्रू। नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं, what are the biggest challenges organizations face while adopting artificial intelligence? Companies often face challenges such as high implementation costs, data privacy concerns, and the need to train employees. Successfully adopting AI also requires careful planning and responsible use. Whenever we are trying to adapt any new thing, we definitely face a lot of challenges because we are not know that thing before. So when we are trying to know that thing, it will be really difficult for us, but it will give us a great result in the end. That's a very true. Technology should always be introduced with proper learning, planning, responsibility and transparency. ओके, नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं, आमिना, एआई के दौर में जो लीडरशिप और अच्छी कम्युनिकेशन है उसकी अहमियत कितनी बढ़ गई है? कम्युनिकेशन लीडरशिप स्किल्स की अहमियत पहले भी थी और एआई के आने से ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इसके बिल्कुल। अंदर हम लोगों को अ, अगर हम लोग कोई अच्छा डिसीजन करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम लोग किसी को लीड कर रहे होते हैं किसी टीम को, तो उसके अंदर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बेटर डिसीजन करें जो कि हर एक इंसान के लिए परफेक्ट हो। तो उसके अंदर बिल्कुल। एआई जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और उसके अलावा अगर हम अपनी कम्युनिकेशन करना चाहें, तो फॉर एग्जांपल अगर हम कभी कोई इंट्रोवर्ट इंसान है और अगर वो किसी दूसरे इंसान से बात करना चाह रहा है,
तो उसको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फ़ील होती है। तो एआई जो है वो इसमें भी हमारी बहुत हेल्प बिल्कुल। करता है कि हम पहले किसी भी एआई टूल के ज़रिए उनसे कम्युनिकेट करके देख लेते हैं कि हमें किस तरह एक-दूसरे से बात करनी है। तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा बेटर होती है एआई से। सो ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर बिल्कुल, आपने सही कहा है। वाक़ई टेक्नोलॉजी जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अच्छे अखलाक, क़यादत और मौसर गुफ्तगू की अहमियत हमेशा इसकी बरकरार ही रहेगी। So, move on the next question. Do you think teamwork will become more important with the rise of artificial intelligence? Yes, definitely. Teamwork will become even more important because AI works best when people from different backgrounds collaborate effectively. Human cooperation, creativity, and shared Okay. decision making are essential for successful AI implementation. Okay, that's an excellent point. Collaboration and teamwork will always be key ingredients for success. ओके, नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं आमिना, आपको रेहान स्कूल के बारे में किसने बताया था और आप इस जर्नी में मतलब आपको कितना टाइम हो गया आए हुए? एक्चुअली मेरे फादर के किसी फ्रेंड ने उनको रेहान स्कूल के बारे में बताया था और मुझे वैसे तो 3 मंथ्स हो गया रेहान स्कूल के साथ कनेक्ट हुए हुए। लेकिन शुरू के जो 2 मंथ्स थे मेरी यूनिवर्सिटी की वजह से आई एम अनएबल टू कंप्लीट माय टास्क ऑन टाइम और टाइमिंग का भी बहुत क्लैश हो रहा था मेरी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग के साथ, इस वजह से मैंने बैच 6 में ट्रांसफ़र करवाया। तो अभी इस बैच में मुझे फर्स्ट हुई थी। ओके, तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने बताया कि आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और इसके साथ-साथ आप रेहान स्कूल के भी एक स्टूडेंट हैं, तो आप किस तरह से अपना टाइम मैनेज करती हैं कि आप दोनों को किस तरह से टाइम दे पाती हैं? टाइम मैनेजमेंट तो बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि मेरी मेडिकल की डिग्री है तो इट वुड बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू वर्क ऑन बोथ साइड्स। सो दैट्स व्हाई मैंने ब्रेक ले ली थी रेहान स्कूल से ताकि मैं पहले अपनी यूनिवर्सिटी के टास्क जो हैं वो उनको कंप्लीट कर लूँ। और अब मैं अपना यूनिवर्सिटी का काम और जो अपना रेहान स्कूल का काम है उसकी मैंने टाइम मैनेजमेंट कर ली है कि मैं सुबह के टाइम पे अपनी यूनिवर्सिटी का काम करती हूँ और रात के टाइम पे अपने रेहान स्कूल का काम करती हूँ साइड बाय साइड। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों काम एक साथ कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको दोनों में तरक्की दे और कामयाब करे। थैंक यू सो मच। आप मुझे ये बताएँ कि जब से आप रेहान स्कूल में आई हैं, तो आपको क्या फीलिंग्स आती हैं कि बाकी स्कूल्स में इस तरह का हमें पढ़ाया जाता है, इस तरह का नॉलेज हमें दिया जाता है? मतलब यहाँ पे तो ये होता है ना कि लीडरशिप बन रहे हैं, आगे के लिए हमें हमारा फ्यूचर बनवाया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? रेहान स्कूल जो है वो एक बहुत यूनिक इंस्टीट्यूट है जो कि स्टूडेंट्स को डिसाइड व्हाट एज दे आर रिलेटेड लेकिन उनको बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं अबाउट एआई क्योंकि आगे जो फ्यूचर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग खुद को भी ग्रो कर सकते हैं और अपने सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनको भी ग्रो कर सकते हैं। और जब एक बिल्कुल। माइंड जो है वो ग्रोथ की तरफ जाएगा तो डेफ़िनेटली वो अपनी कंट्री को, अपनी सोसाइटी पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो देगा। और अगर हम बाकी इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो सब इंस्टीट्यूट्स बुरे नहीं है, हमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। बट बिल्कुल। रेहान स्कूल के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि इसके अंदर सब कुछ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया जाता है, बताया जाता है और एक बड़ा ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट है, जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स में कम देखने को मिलता है। और बिल्कुल इनका ऐसा ही जो है। पढ़ाने का तरीका है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है। सो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप मुझे ये बताएँ कि जब आप रेहान स्कूल में आई थी, आपका फर्स्ट डे था, लाइक जब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरा जब फर्स्ट डे था तो मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन और होती थी। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी इतना कोई अच्छा नहीं था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ मुझे यहाँ से सीखने को मिला है। तो आपको क्या-क्या यहाँ से सीखने को मिला है? लाइक आपको भी पहले इस तरह से हेजिटेशन होती थी और आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाती थी? नहीं मुझे सच हेजिटेशन तो नहीं होती थी क्योंकि मैं एक डिबेटर थी, तो ऑलरेडी मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था लोगों से बात करने का, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा सच हेजिटेशन तो नहीं। हाँ, बट हाँ, स्कूल में आकर बहुत सी ऐसी पॉज़िटिव चीज़ें जो हैं वो मेरे अंदर आई हैं। द फर्स्ट वन इज़ टाइम मैनेजमेंट। मैं बहुत बेहतर तरीके से अब टाइम मैनेज कर लेती हूँ और आपको एक रूटीन के अंदर जो काम करने का एक प्रोसेस होता है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से समझ आ सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ओके, आमिना आप मुझे नेक्स्ट ये बताएँ व्हाट एथिकल कंसर्न्स शुड वी कीप इन
mind while using artificial intelligence? We should ensure that AI is used fairly, transparently, and responsibly. Protecting privacy, reducing bias, and preventing misuse are some of the most important ethical concerns. Uh, like you can see that most of the people are using AI to ruin other people's privacy. They are using their pictures and misuse their pictures, and that is why the ethical concerns are raised by the use of artificial intelligence, that you can create any other person's voice and you can do anything with their pictures and with their voice. So uh, that is where the ethical concerns arise. Okay, that's very balanced answer. AI can certainly save time, but human wisdom and experiences are still essential in making the right hiring express decisions. ओके नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं आपके ख्याल में मुस्तकबिल में कौन से ऐसे पेशे हैं जो एआई की वजह से बहुत तरक्की करेंगे? uh, बहुत से ऐसे पेशेंट जो कि एआई की वजह से तरक्की करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी का। क्योंकि हेल्थ केयर के अंदर अभी एआई टूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, और इन फ्यूचर ये भी पॉसिबल है कि जो रोबोट्स हैं वो सर्जरीज को प्रोसीड कर सकते हैं। और बिल्कुल उसके जी। अलावा मार्केटिंग के अंदर एआई का एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल है। पहले जैसे हम लोगों को डोर टू डोर जाकर मार्केटिंग करनी पड़ती थी प्रोडक्ट्स की, बट अब हम लोग एड्स के थ्रू और एआई टूल्स के थ्रू डिफरेंट विजुअल्स क्रिएट करके मार्केटिंग जो है उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और इसके अलावा आर्किटेक्चर के अंदर और डाटा एनालिटिक्स के अंदर और इस तरह के बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं जिनके अंदर हम लोग एआई को बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में एआई के इदारे में कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है जिसके साथ हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए? आई एम सॉरी, आई कांट हियर यू, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? ओके, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि एआई जो है उसको हम लोग किस तरह से जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? ओके, एआई को हम ज़िम्मेदारी के साथ इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए यूज़ करें। यानी कि अगर हमें एजुकेशन के लिए एआई की ज़रूरत है, तो हम सिर्फ एआई टूल्स के ज़रिए अपने टॉपिक्स को समझने की कोशिश करें। और उसके अलावा अगर हम लोग एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए एआई को यूज़ करना चाहते हैं, तो हम इस बात का ख़्याल रखें कि हम उसको सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखें। उससे हम किसी दूसरे इंसान को नुकसान ना पहुँचाएँ, और एक बिल्कुल। पॉजिटिव जो मैसेज है उसको स्प्रेड करें एआई के थ्रू। और एआई को सब लोगों के लिए एक पॉजिटिव चीज़ ही रहने दें, ना कि उसकी नेगेटिविटी को इंक्रीज़ करें, जिसकी वजह से एथिकल कंसर्न्स भी राइज़ हो सकते हैं और इस तरह के टूल्स पे बैन भी हो सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। आई ट्रूली अप्रिशिएट योर आंसर। नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में मुस्तकबिल में कौन सी ऐसी महारतें हैं जो हर इंसान के लिए ज़रूरी होंगी? अ, मेरे ख़्याल से सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूचर के अंदर। उसके अलावा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमारी प्रेज़ेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जो मेजर चीज़ है वो ये है कि हम लोगों के साथ बात करनी चाहिए, और हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, ताकि हम लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से सोच सकें और उसको आगे इम्प्लीमेंट कर सकें। सो दीज़ आर द थिंग्स व्हिच वी कैन लर्न इन फ्यूचर। ओके, दैट्स वंडरफुल आंसर। नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू टीचर्स एंड एजुकेटर्स अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? Uh, I, w- I would encourage teachers to see AI as a supportive teaching assistant rather than a replacement. By using AI wisely, they can make learning more engaging, personalized, and efficient for the students. That's great. Beautifully said. Technology can support education, but inspiration, guidance, and care always come from great teachers. Okay, move on the next question. Finally, next and last question. If you could give one message to our viewers about AI and the future of work, what would it be? My advice is to embrace AI as a tool for growth rather than fear it or misuse it. Keep learning, stay adaptable, and develop both technical and human skills, because the future belongs to those who are willing to learn and evolve. So, we should evolve ourselves, and we should use artificial intelligence as a positive source, and don't spread negativity by using this tool. That's all from my side. Thank you so much.
Okay, Amina Leadership Money, thank you so much for joining us today and for sharing your valuable knowledge, practical experiences, and thoughtful insights on AI and the future of work. It has been a truly inspiring and informative conversation. Your words have encouraged us to embrace artificial intelligence with confidence, responsibility, and a lifelong commitment to learning. I sincerely appreciate your time and your wonderful contribution. May Allah bless you with continued success, good health, and countless opportunities to inspire others. And thank you so much once again for our wonderful viewers. Uh, we are hope today's discussions has helped you better understand how artificial intelligence is shaping the future of work and why learning new skills is more important than ever. If you enjoyed this interview podcast, please like, share, and subscribe to my channel for more inspiring conversation about AI, education, leadership, and personal growth. Until we meet it again, keep learning, keep growing, and keep believing in yourself. Okay, Allah Hafiz, Amna Leadership Wali, and Allah Hafiz everyone. Fi Amanillah. Allah Hafiz.